Okay, welcome back. So Porifera, Sortula, fine. Next we'll start with Nidaria. Now, Nidaria को आगुरु आमे कौन कहूथिले Coelenterata. Coelenterata included both Nidaria and Ctenophora. तापरे देखा गला that Nidarians मानव पाखरे किछटा special properties अछि and Ctenophoras are different to Nidarians. Then दुईटी फाइला को अलगा कर दिया गला. So Coelenterata आउ न है कि it divided into two groups. One is Nidaria, the other is Ctenophora. Okay. Now what are these? ताको properties कौन? Same way general features को ऊपर focus करो. Okay. Look at it. फटाफट आ जाओ रे बच्चा, फटाफट आ जाओ बच्चा, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ. ठीक है, धन्यवाद मत दो, धन्यवाद हो गया. अब आ जाओ वापस. Restart, restart, restart. Come on. Okay, let's begin. Now, when you talk of Nidaria, prathame, what grade of organization do we have in them? Okay. Basically, the Porifera had cellular grade organization. Nidarians तांकोडारू टिके अधिक evolved हे गले. Nidarians are slightly more evolved than the Poriferans. So they now have a tissue grade organization. Okay, fine. And our body plan कौन है ला? Blind sac body plan. Remember these things. ठीक है जी. Now they have tissue grade organization. That means तांकर में tissue develop है ला. Okay, but they have still blind sac body plan. Now blind sac body plan माने कौन? Blind sac body plan माने only a single opening. माने input and output पाइन की गोटी opening अच्छी body रे. The entire body has a single opening for both ingestion as well as egestion. Clear? Okay. Fine. Then comes symmetry. Ankara symmetry is unique radial, means you can divide the entire organism into two equal halves on any plane. Again, you can divide the entire organism into two equal halves on any plane. Hikochi. Therefore, we refer to it as what? Radial symmetry. Hikochi. Now, in some cases, radial symmetry को spherical symmetry मध्य कुआ जाइची. So both are okay, correct. But normally radial is more appropriate. Fine. How? In this example, you can see this radial symmetry. Fine. This specimen is referred to as hydra. This specimen is referred to as hydra. And you can cut it along any plane, hence radial symmetry. Fine. Now, germ layers corner, they have two germ layers. Outer ectoderm and inner endoderm. যেহেতু দুইটি germ layers হইল outer ecto inner endo, therefore diploblastic. Okay. Now, some of you had mentioned a term mesoglia, mesenchyme. ठीक है? Then mesohyla. Now all these things are clearly visible here.
as you can see here, देख लियो, ये आपकी आउटर एक्टोडर्म है, ये आपकी इनर एंडोडर्म है. मौजिरे, देखो मौजिरे, there is a presence of an undifferentiated mass of cells. Undifferentiated माने तांकर function definite नहीं, they do not have a fixed function. ठीक है जी. So certain colloidal mass or matrix along with certain undifferentiated cells मिसेगी गुटे semi liquid and semi solid भलिया structure तैयारी कले. ठीक ଅଛି, that is known as mesoglea or mesenchyme. Clear? बुझ पालो रे? Okay, fine. जेहेतु तांकर दुईटी germ layers ही अछि, outer ecto and inner endo, therefore we call it diploblastic. ठीक है, याद रखिएगा. Then comes coelom. Now you cannot see any body cavity. outer ectoderm रहिला, मझिरे mesoglea रहिला, भितरे endoderm रहिला. Body cavity nahi, there is no body cavity, sethipai coelom nahi, hence acoelomates. Is that clear bachcha? Is that clear? General features upare primary focus rakho, because NEET syllabus basically refers to the general features only. So general features ko ekdam thorough questions jo pachara jauchi all come from general features only. ठीक है, along with examples, therefore focus on that. ठीक है, fine. Now ये सब चीजें very very simple है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. And one more small request to you people, since NEET, ठीक है, and all other national level exams follow NCERT as their textbook reference, तो जितने बड़े भी क्लास करूचो पाखरे तमरो NCERT बही रही थिबा दरकार, ये मैंडेटरी है, बुझिएला. Why? Because questions are directly asked from the textbook line by line. ठीक है, no questions are coming for the last 10-15 years, no questions come from outside the book. सारे questions आपके NCERT में से ही पूछे जाते हैं. Yes, there are a few concepts जो उठा हमें तुम बताइबू, they may not be present in the NCERT but are required for better understanding. But पढ़िला बेले NCERT बही तम सामने रे खोला थिबा दरकार. So when we teach, you relate it with your textbook and that will give you a better clear understanding. Is that clear to you? ठीक अछि, तो एई जिंसडा मने रखो. And again a request कि classroom रे जेमती proper समस्ते प्रेजेंट रहिबो, because एई जो तम पाई कि उद्यमटी करा होची, the effort that is being given for you people, take full advantage of it. Take full advantage of it. This is a privilege given to you people. ठीक है जी, classes attend करो, you will see that you will learn in a very very productive way. Okay, see it. Then comes habits and habitats. Now जेमती पॉरिफेरा केस देखिथिलो, सेमती निडेरियंस माने मध्य are aquatic. Nidarians are also aquatic. ठीक है, but they are mostly marine. जेमती in case of poriferans भी देखिलो, mostly marine है. Some of them might be fresh water. एठी मध्य से बढ़िया mostly marine है. Some of them like hydra, can be observed in fresh water. ठीक है, they are sessile or free swimming. Sessile माने attached to surface संगरे लागी थी, जेमती हाइड्रा सरफेस संगरे लागी थी वो, सी एनिमोन, ठीक है, ड्यूजिशिया लागी थी वो, ओके, एडम्सिया लागी थी वो. Now remember these things. और free swimming माने like Physalia, jellyfish जोटा तुम्हें कहूचो, Aurelia,
एमाने फ्री स्विमिंग ही थांती. They can move from one place to another by propulsion. Propulsion. एमती करेगी. Jellyfish movement में देखिबो, they will leave water, water टाइप direction में गला, and they will move away. This is known as propulsion. ठीक है? Okay. There is a solitary or colonial. माने एकारो ही थांती, single or present in groups together. That is colonial. ठीक है जी. तो कौन सी किलो हैबिट्स एंड हैबिटेट रे मोस्टली मराइन है. ठीक है. Rarely fresh water. They can be sessile or can be free swimming. They can be sedentary or solitary, that is single, or they can be free swim. They can be colonial, living in groups. बुझिए ला रे. Is that clear to you people? ठीक है, आगे बढ़ो. Fine. Now, if you look at the digestive system, basically they are, as I have already told you, mentioned in the beginning, Kono, they have a blind sac body plan. Blind sac body plan. Jehetu blind sac body plan achi, so they have only a single outlet and single inlet. So alimentary canal is incomplete. The gastrointestinal tract or alimentary canal term gudika mone rakho, because kali sakale tome doctor habo, you will become doctors, MBBS. So terminology is very important for you people. ठीक है? तो gastrointestinal tracts or alimentary canal anko case re is not evolved but developed. ସେଥିପାଇଁ incomplete ଥାଏ ତାଙ୍କର digestive system. ठीक है? Digestion आंकर mostly intracellular ହେଇଥାଏ. Some cases रे किछि मात्रा रे extracellular ହେଇଥାଏ. Mostly intracellular. ठीक है? Some extracellular. Clear? काहेकि hydra etc. मानकर gastrovascular cavity था, as you can observe here. एटा ही तांकर mouth. This is their mouth. ठीक है? तो ये अगर माउथ है, यही बाटे ही सेमाने खाद्य भितरु नहीं थांती. ठीक है? ये उनकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है. As you can see clearly, gastrovascular cavity it sorry gala. So it does not have another opening. माने anterior opening अच्छी, posterior opening नहीं. Anterior opening is present, posterior opening is absent. ठीक है? So mouth बाटे खाद्य वाला. Yes, fine. Food entered. कोडी पहुंचला, cavity रे पहुंचला. ठीक अछि. Gastrovascular cavity रे पहुंचला. एटा सिलोम से तो confuse करिवनी. सिलोम नहीं, but gastrovascular cavity is there. Fine. सेठी कौन हला? सेठी digestive enzymes are released from the cells. The cells are mostly unicellular and can be glandular in nature. Called glandular. Glandular. Jemti amor case re augmentic cells, peptic cells, etc. are there. Anko case re mota glandular cells are there. एमाने कौन करती? एंजाइम प्रोडक्शन करथांती. ओके, कोडी एंजाइम बाहर कले, कोडी बाहर कले इनटू द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. तो किछि मात्रा रे तार ब्रेकडाउन करिवे, तापर ताको एब्जॉर्ब करनेबे. केमिति करिवे? by villi and microvilli particles which are there, or by phagocytic action. देखो एटी फूड पार्टिकल engulfed, यही प्रोसेस को कौन कहा जाता है? फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस मन रखिबा. ठीक अछि? engulfing of food is known as phagocytosis. तो जेमती किछि मात्रा रे फूड टा एंजाइम द्वारा हजम हे गला कोडी कैविटी भीतर. तापरे rest semi digested food is absorbed by the cells.
absorption ପରେ cells once absorbed kernel ठीक अछि engulf kernel then intracellular digestion हबो बुझ पालो कथाटा ओके जहाँ अल्प किछि मात्रा रे एक्स्ट्रा सेलुलर हे गला rest is the intracellular mechanism so food particles are digested where in the food vacuoles ता भीतर phagosomes अछंती एटी जो food vacuole कहूचे हमें that food vacuole basically कौन ना phagosome ठीक है so inside the phagosome the food material is digested properly and hence digestion complete हवा बुझ पालो रे ओके फाइन नाउ एमानकर खाद्य कॉमनली कौन एमानकर खाद्य कॉमनली कौन कौन aquatic insects एटा गोटे खाद्य अंकर छोट crustaceans small fish ठीक है स्मॉल छोट ठीक अछि crabs खाई परिबे lobsters खाई परिबे insects खाई परिबे माछो मानको मध्य खाई परिबे ठीक अछि but they would be relatively smaller in size compared to their body okay then जदि systems कथा देखिबा then respiratory system is not developed हेई नथाए तो gaseous action केमिति हबो by body surface body surface रे body wall रे exchange of gases ठीक अछि between the outer environment and the inner environment ठीक अछि CO2 etc जो production हबो CO2 etc जो production हबो CH production हबो ठीक अछि and oxygen etc will come from outside to inside CO2 यहाँ से बाहर जाएगा and O2 यहाँ से अंदर आएगा so gaseous exchange by कौन यूज देला ना body surface कौनसी प्रकार रो सिस्टम नाही जेमति हमर पल्मोनरी सिस्टम अछि लंग्स रो ठीक अछि माछ मानकर ब्रांकियल सिस्टम अछि गिल्स रो बेंग मानकर तीन रो सिस्टम अछि कोन पल्मोनरी अछि ल्यूकोफारिंजियल अछि क्यूटेनियस अछि बुझेला तो एमानकर कोनसे सिस्टम से बड़ी डेवलप ही नाही ओनली बॉडी सरफेस ओके सिंपल जिंस ना ए जनरल फीचर्स केते जिंस जानि परछो देखो दैट्स व्हाई जनरल फीचर्स मानको बहुत बहुत इंपोर्टेंस दबो वेरी इंपोर्टेंट ठीक है इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर रिलेशन अगेन अच्छा ओके तो एक बार बता दीजिए अरे बच्चा ठीक है यार टेंशन मत ले बता रहे हैं वापस ठीक है नाउ देखो सपोज वी टेक दिस स्पेसिमेन दैट इज हाइड्रा ये उनका मुंह है ठीक है दे एनगल्फ द फूड थ्रू हियर यहां से इन्होंने फूड को अंदर लिया ठीक है जी फाइन once the food has entered into the gastrovascular cavity ये आपकी GVC है this is your GVC gastrovascular cavity ठीक है इस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की जो लाइनिंग है ये इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं now these cells have glandular surfaces ठीक है फाइन इनमें छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं that are unicellular mostly तो उन ग्लैंड्स का काम क्या है एंजाइम प्रोडक्शन करना तो once they have produced the enzyme and the food is inside the cavity तो उनके ऊपर एंजाइम्स आकर गिर जाएंगे इन पे फूड पे सो सम अमाउंट पे फूड डाइजेशन होगा जैसे प्रोटीन्स के लिए प्रोटियोलाइटिक प्रोटीएजेस आएंगे ठीक है शुगर्स के लिए अमाइलेजेस यूज करेंगे ठीक है फैट्स के लिए लाइपेजेस यूज करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के लिए न्यूक्लियेजेस यूज करेंगे सो ऑल दीज विल बी इन सम क्वांटिटी डाइजेस्टेड कहाँ डाइजेस्ट होंगे इनसाइड द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी ठीक है तो जब गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में डाइजेशन पार्शियली हो गया अब उसके बाद क्या होगा
जितनी मात्रा में डाइजेशन होनी थी हो गई. रेस्ट ऑफ द डाइजेशन विल ऑकर इनसाइड द सेल. तो क्या होगा, इन चीजों को वो सेल एनगल्फ कर लेंगे. एनगल्फ मतलब खाएंगे, सेल खाएगा. तो द मैकेनिज्म बाय विच द सेल्स engulf the food material is known as phagocytosis. ठीक है, साइटो का अर्थ सेल होता है, फैगो का मतलब खाना होता है. तो सेल खाना खा रहा है मतलब फैगोसाइटोसिस. ठीक है, सेल पानी पिएगा तो पिनोसाइटोसिस. फैगो मतलब खाना, पिनो मतलब वाटर. ठीक है, ओके. सेल ईटिंग, सेल ड्रिंकिंग. अब उसके अंदर, सेल के अंदर क्या होंगे, फैगोसोम्स होंगे, food vacuoles होंगे. These phagosomes or food vacuoles would digest the food inside the cell. वो हो जाएगा इंट्रासेलुलर. समझ में आ गया बच्चा? Is that clear now? अरे बुझिल रे सृष्टि, is that clear? चल बढ़िया, शाबाश. ओके फाइन. उसके बाद बच्चा आया सर्कुलेटरी. रेस्पिरेटरी के बाद सर्कुलेटरी. अरे भाई रेस्पिरेटरी जब नहीं है तो सर्कुलेटरी क्या करेगा? तो सर्कुलेटरी भी नहीं है. सो सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट. ठीक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है दैट द सब्सटेंसेस आर नॉट फ्लोइंग इनसाइड इट. ठीक है, चीजें इसके अंदर मूव करती है, बट कोई डेफिनाइट सिस्टम नहीं है. कोई डेफिनाइट सिस्टम नहीं है. Means there is no pattern or there is no specialized structures involved in the movement. उस वो सब नहीं होता. बट जैसे मान लो ये बॉटल है, यू कैन सी दिस बॉटल क्लियरली. अब इसमें अगर मैं पानी डाल लूं, इसमें कोई सिस्टम है क्या? नहीं. बट द वाटर इनसाइड में फ्लो बा सर्कुलेट. ठीक है, ऐसे सर्कुलेट, ऐसे सर्कुलेट. ठीक है, मूव अप एंड डाउन साइडवेज, बिकॉज वो फ्लूइड है. तो उसका काम ही है फ्लो करना, तो वो अपने आप फ्लो कर लेगा. व्हाई? बिकॉज ये मसल्स वगैरह जब मूव करेंगे, ठीक है, ये जब मूव करेंगे वॉल वगैरह, सो दे वुड कॉज द वाटर करंट और द फ्लूइड टू मूव. ठीक है, बट रिमेंबर सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट. मतलब जैसे हम में सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है वगैरह वगैरह. ठीक है, तो इनमें वैसा कुछ नहीं है. नो particular structures are involved in the circulation of the fluids etc. Hence absent. ठीक है, अरे ठीक है, बढ़िया. आगे चलो. ठीक है, तो जब सर्कुलेशन नहीं है, ब्रीदिंग एक्सचेंज नहीं है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आती है एक्सक्रीशन के ऊपर. तो एक्सक्रीशन भी, एक्सक्रीशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाई? बिकॉज जब खाना खा रहे हैं, ठीक है, डाइजेशन कर रहे हैं, सो वेस्ट मटेरियल भी तो निकलेगा ना. रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो वेस्ट मटेरियल्स विल कम आउट. ठीक है, बट वेस्ट मटेरियल जो बाहर ही हो, दैट आर डायरेक्टली थ्रोन आउट थ्रू टू मेथड्स. एक डिफ्यूजन थ्रू सेल्स, ते बॉडी वॉल थ्रू रे बाहर ही पड़े वो, दैट इज वन. और उसी माउथ से वापस निकल के जाएगा. ठीक है, सो द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन केस ऑफ द लिडेरियंस इज अमोनिया. तो एमाने हेले कौन हो? एमोनोटेलिक. मने रखिबो नाटी, एमोनोटेलिक. ठीक है, excretory system absent. excretory system absent नहीं. तो excretory structure टी कौन? excretory structure टी कौन? body surface, body surface और mouth, और माउथ जेहेतु सिंगल ओपनिंग अच्छे. अरे बुझिए ला रे, सिंपल सी बात है. ठीक है, ओके. देन लोकोमोशन मूवमेंट करते हैं ऑब्वियसली. फाइन. लोकोमोशन मूवमेंट में स्पेशल स्ट्रक्चर्स कौन हो? यस, टेंटिकल्स.
टेंटिकल्स, ठीक है। जेमती फॉर एग्जांपल टेंटिकल्स यूज करके सेमाने लोकोमोशन करि पारंती, प्रोपल्सिव मेथड्स, और इन केस ऑफ हाइड्रा एटसेट्रा समरसॉल्टिंग, ठीक है, क्रॉलिंग एटसेट्रा मध्य देखा जाता है। सही जिनसोटी एठी नहीं, बट कहाँ मिलेगा आपको, एक और चैप्टर है बाद में चल के तमरी फर्स्ट ईयर रे, दैट इज लोकोमोशन मूवमेंट। सेठी हमें तांकर सही स्पेशल फीचर्स को मध्य देखिबा, बुझ पाइल पॉइंट दा। सो सेठी भाई I told you to refer to your NCERT textbook. Why? Because को चैप्टर रे कौन अच्छी पढ़ीवार वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। गॉट द पॉइंट, ठीक है। सो इसलिए साथ में रखो किताब को आपकी, एंड देन यू रेफर टू इट। एंड उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज आई सेड प्रीवियसली आल्सो, इज द रिप्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे इन केस ऑफ नीडेरियंस कैसे होती है? अगेन you can have both methods of reproduction. That is number one, a sexual method, no gametes involved. दूसरा sexual method. ठीक है जी, फाइन। तो asexual method में हुआ क्या? फॉर एग्जाम्पल यू सी हियर, ये आपकी हाइड्रा है, ओके। हाइड्रा रे असेक्सुअल मेथड रे हमें कौन देखता हो ना, बर्डिंग। यहाँ पे क्या डेवलप हुआ, एक बर्ड हुआ, ओके। ए बर्ड टी को कौन कुआ गला, दिस बर्ड इज अ स्मॉल पॉलिप, ठीक है। असेक्सुअल बर्ड फॉर्मेशन हुआ, फाइन। अब ये जो बर्ड है, ठीक है, पॉलिप है, ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, बुझेला। माने यहाँ पे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एटा गोटे ध्यान से बुझिबो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वेरी यूनिक है। माने ए निडेरियंस मानकर ही देखा जाता है, समझ में आई बात? ये बाकी लोग का नहीं दिखता है, तो यूनिक एटा ध्यान दियो एटी। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, बर्ड फॉर्मेशन हुआ, फाइन। तो ये जो बर्ड फॉर्मेशन बा पॉलिप फॉर्मेशन है छी, ये धीरे धीरे मच्योर किया, मच्योर कला परे गोटे लार्वा फॉर्म करिवो ये, ठीक अछि। लार्वा फॉर्म करिवो ये, दिस लार्वा विल हैव टेंटिकल्स एटसेट्रा इन इट। से लार्वा टी को खुआ गला एफाइरल लार्वा, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ओके। एबे पर्यंत नो गैमेट एटसेट्रा आर इन्वॉल्व, सेतिबा ये असेक्सुअली चालिछ, ओके। एबे ए एफाइरल लार्वा टी बड़ो हैला, मैच्योर हैला, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैला, then it will result in the formation of medusa. अडल्ट स्टेज को कौन कहले रे बाबू, मेडुसा कहले ना। ए मेडुसा टी कौन, एटा, दिस इज द मेडुसा वी आर टॉकिंग ऑफ। तो सही मेडुसा मानो को केस रे कौन डेवलपमेंट हैला, गोनाड्स डेवलपमेंट हेले। गोनाड्स कौन करंती, यस, गोनाड्स गैमेटोजेनेसिस करंती, गैमेट तैयारी करंती, बुझेला। सो गोनाड्स undergo meiosis to form gametes, that is gametogenesis, ठीक अछि। formation of gametes, अरे बुझिल रे। तो एबे पर्यंत असेक्सुअल थिला, 80 गैमेटोजेनेसिस कला परे ये क्या हो जाएगा, अरे सेक्सुअल हो जाएगा। और क्या होगा, बिकॉज गैमेट इन्वॉल्व नहीं तो असेक्सुअल है, गैमेट इन्वॉल्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक्सुअल हो जाएगा। यस, लुक एट इट। सो गैमेटोजेनेसिस हला, गोनाड्स रे गैमेट थियरी हेले, दुईटी प्रकार गैमेट थियरी है मेरे बच्चा। यस, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, दो तरह के होंगे। दिस इज मेल गैमेट, दिस इज फीमेल गैमेट, स्पर्म एंड एग। यस, गैमेट थियरी है।
ओके वी नो गैमेटोजेनेसिस रे कौन इन्वॉल्व होता है ना मियोसिस मियोसिस कौन करे 2n जदी अछि डिप्लॉयड ताकू डिवाइड कला परे आमे चारोटी हाप्लॉयड पाई थाउ चारोटी हाप्लॉयड पाई थाउ दिस इज नोन एज मियोसिस ठीक है तारो दुईटी स्टेज था रे बाबू मियोसिस 1 मियोसिस 2 ठीक है so at the end of meiosis गोटे पर्टिकुलर सेल रू ठीक अछि हमें चारोटी गैमेट्स बा हैप्लॉइड सेल्स पाई था वो हो गए आपके क्या गैमेट्स ठीक है तो अंडा बन गया एग हे गला स्पर्म हे गला एबे कौन हबो egg and sperm fuse together fertilization हला ठीक है फर्टिलाइजेशन कौन तैयारी हला रे जाइगोट ठीक है जी फ्यूजन ऑफ sperm and egg results in development of zygote इस zygote टी धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस कला ठीक है बा डेवलपमेंट कला एंड फाइनली गोटे फ्री स्विमिंग लार्वा तैयारी कला से लार्वाटी रो ना कोन प्लानुला मन रहिला प्लानुला as you can see in the figure चारियाडे तार सिलियरी स्ट्रक्चर्स अछि सेथि पय सेटा फ्री स्विमिंग लार्वा हेंस ठीक अछि कॉल्ड फ्री स्विमिंग नाटिएला प्लानुला ए प्लानुला लार्वा कोन करिवो ना ये जाकर कौनसी गोटे सबस्ट्रेटम रे लागी जीवो कोई भी सबस्ट्रेटम में चिपक जाएगा once it is attached to the substratum now then it will start to evolve or grow ठीक अछि जेउटी अटैच हैला सेठी ग्रो करिवो जो ग्रो करिवो that is polyp तो आमे कौन देखिले एठी आमे कौन देखिले एठी पॉलिप रु मेडुसा तैयारी होउची पुनी मेडुसा रु पॉलिप तैयारी होउची बुझेला पॉलिप टी हमर होउची कोन असेक्सुअल मेडुसा कोन होउची सेक्सुअल एई जो कन्वर्शन टी होउची from asexual to sexual and sexual to asexual this is known as metagenesis the process in which there is alternation of sexual into asexual माने alternation of generation होउची plus alternation of form भी होउची in both these cases now therefore we refer to it as metagenesis এটা बहुत important term टी and metagenesis is a unique feature available only in cnidarians बुझेला रे only cnidarians are the ones that actually display metagenesis hence remember this very important ठीक अछि now those who are missing the class they are missing a very important thing এই জিনিস গুড়ি এতে সুন্দর জিনিস they are so unique features of the animal kingdom এটা না বুঝিবার বহুত দরকার ঠিক है কাहे कि cnidarians are the ones that show two things गोटे alternation of generation alternation of form alternation of generation माने asexual ru sexual ru asexual alternate हला plus alternation of form माने पॉलीफॉर्म रे थिले मेडुसा को गले मेडुसा रो पुणी पॉलिप तैयारी हला तो एई जो जिंसटी तमे देखुछो ये बहुत यूनिक है एंड सेहिति पई एई जिंसटी तमे सुनिथिबो that cnidarians some of the cnidarians are considered to be immortal माने के मरिबेनी केमिति देखो पॉलिप रे अछंती जेतले मरिबार टाइम आसिला से माने मेडुसा रे कन्वर्ट हे गले पुनी मेडुसा रे गैमेट तैयारी हला गैमेट फर्टिलाइज हला पुनी पॉलिप तैयारी गला तो
पूर्व पॉलिप टा मोला कोठी समझ में आया वो तो चलता रहता है so basically they are as good as immortal कभी नहीं मरेंगे बुझे लगा थोड़ा okay then when you look at the Cnidarians, they are basically of two types in terms of sex. ठीक है? They can be either dioecious, माने male and female are separate. Male and female are separate. अलगा organisms. কিংবা hermaphrodite বা monoecious বা bisexual মধ্যে হই পারিবে जोटी male and female reproductive parts can be present on the same organism बुझेला but mostly they are dioecious that is two different organisms are present for male and female ठीक अछि fertilization नी कोठी ହେଲା external fertilization मतलब water में हुआ water रे हबो ठीक अछि then development केमिति ହେଲା indirect काहे कि अरे एथिडे लार्वा अछंदी एफायरल लार्वा अछि प्लानुला लार्वा अछि so since there are larvae involved metamorphosis होउची तो development ही कौन indirect development ठीक है अरे is that clear रे बच्चा yes ठीक है अब आओ यूनिक फीचर पे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काहे कि यही जिनस पाई की ही इसका नाम निडेरिया दिया गया है it is because of this unique feature only that we refer to these group of organisms or phyla as nidarians ठीक है याद रखिएगा हो देखो tentacles with nidoblast. So it is the presence of these nidoblasts that gives this phylum its name, that is Nidaria. Okay? The tentacles have nidoblasts present in them, which helps them to hunt, find food, capture food. एमाने हेले predators, एमाने hunt करी खाती, माने शिकार करी खाती. तो ये शिकार करिवारे the unique structure which is involved is this tentacle containing nidoblast. ठीक है now nidoblast कौन how does it function let us see okay see here tentacles are finger like structures ठीक है finger like long finger like structures which surround the mouth of the coelenterix. The mouth region ର ଚାରିକଡେ tentacles ଭଳି structures ବାହାରିଛନ୍ତି. Okay. They are used for what purpose? Food capture and defense. ठीक ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ. ଠିକ ଅଛି to capture food or defense ମାନେ protect themselves. ଯଦି କିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ attack କଲା ତାହେଲେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ କେମିତି सेठी भी यूज करिवे ओके देन important very important nidoblast ठीक अछि now nidoblast by nidocytes कौन they are stinging cells okay sting माने कौन जोथरे नो गोटे शार्प जिंसटी ठीक अछि शार्प नीडल भली जिंसटी containing some kind of toxin or poison ठीक अछि mostly neurotoxin ही थाए ठीक अछि तो sharp needle like structure with toxins or poisons present inside it ठीक अछि is referred to as stinging cells clear okay they are present on the tentacles and the body with a poison-filled capsule called nematocyst. ठीक अछि mark this you will understand
एटा हला से nidoblast जोटा लिखा है this is the nidocyte or nidoblast so ये nidocyte माने total structure टा कुआ जाए ता भितरे एई जो पाउच वाली स्ट्रक्चर टी देखु न कि this pouch like structure is known as nematocyst ता भितरे ही तमर कोन अछि रे बाबू the toxin is present को प्रकार टॉक्सिन था रे बाबू it is neurotoxin माने तो माने जानी थिबो कि सुनी थिबो टॉक्सिन बेसिकली दुई प्रकार होती ओके गोटे हला न्यूरोटॉक्सिन आ गोटे हला साइटोटॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन कौन काम करे it basically paralyzes it affects your central nervous system and causes paralysis माने आ हाथ गोड़ एटसेट्रा मूव करबो नाही that is what you call paralysis बुझेला and cytotoxin कौन से सेल को मार दो उसका will cause hemorrhage fine तो आंकर जो ये सेल टी हला एटा हला टॉक्सिन टी हला एटा हला न्यूरोटॉक्सिन तो it will simply no paralyze the victim सरीला of essence okay fine so basically they cause the paralysis of the victim by prey and cause their complete loss in movement and okay got the point this is how they function oh एट देखो एटा भी बहुत थोड़ा सुनी थिबो कि हमर जो जेलीफिश बा फाइसेलिया कुआ जाए ओके पोर्तुगीज मान ऑफ वॉर एई निडेरिया कैटेगरी बहुत समय रे समुद्र रे जो माने गाधेया पे जानती बा स्विमिंग को जानती से माने जानी पारंती कने जेलीफिश माने कोन ओडा एमती लागियो एमती प्लास्टिक वाला जिंसडा पड़ची पानी रे बा नो छता वाला जिंसडा पड़ची मैंने मेरी टाइम्स देखा भी जीवन ठीक है तो से माने कोन करी ना जानी परियन ताको टच कर दे बा ता हाथ गोड़ दे बाजी गला जेमती बाजिला देन टेंटिकल रे से थिबा निडोसाइट बा निडोब्लास्ट रे stinging cells रे the nidarian will simply pinch them sting them तो जेमती स्टिंग करिवो तो बॉडी भीतर से टॉक्सिन का इंजेक्ट हो जाए and results in paralysis माने गोड़ हाथ तो मूव होबो नहीं किंबा निश्वास नबा को असुविधा हो रेस्पिरेटरी फेलियर से पारे बा अनकॉन्शियस हो जाई पारंती तो that results in drowning of many swimmers or sports activists surfers ठीक अछि many cases अछि specifically देखिबो तमरो कैलिफोर्निया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जोटी की वार्म वाटर्स नॉर्मली मिलता है सेठी एई एक्सीडेंटल केसेस बहुत हुए many so this is a very dangerous thing ठीक अछि नॉर्मली माने आंखो जो स्टिंग थी हमको मारी परिबने भाई बिकॉज़ स्टिंग ताकरो क्वांटिटी बहुत कम ठीक अछि किंतु पेन और पैरालिसिस इमोबिलाइजेशन से पार्ट रे कर दबो तो सपोज तुम पेन होची एंड पैरालिसिस हे गला गोडरे तो तम गोड़ा हाथ मूव करि परिबनी तो ड्राउन करके लोक मर जियो गॉट द पॉइंट नॉट बाय द पॉइजन बट बाय ड्राउनिंग जेहेतु से पार्टी काम करूनी अंडरस्टूड द पॉइंट सो रिमेंबर दिस ठीक है अच्छा ये खाना कैसे नो हाउ डज इट obtain the food look at it say this is the tentacle fine now a tentacle रे एडी कोन अछि ए निडोब्लास्ट अछि दिस इज द निडोब्लास्ट हियर तो दीटा प्रकार थिवो ओके कोन एटा जो देखु छ दिस इज क्लोज्ड
एटा हला ओपन बुझेला काहेकि अरे सदाळे तो दरकार नहीं ना जिते रिक्वायरमेंट हबो सेते बाहर करिवो तो मोड़ी माड़ी है कि भीतर पसिकी अच्छी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऐसा करके है फाइन सो this is the basically no the form in which it remains when inactive एटा जो देखो जो तुम्हारे एठी ठीक है ये जो ट्रिगर बोल रहा है इसको हम लोग नॉर्मली स्पाइन बोलते हैं ठीक है दिस स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर is sensory in nature माने it can sense माने पाखरे किसी जिनिस अच्छी कि any organism or object is there ठीक है तो ये प्रेशर रे बा केमिकल्स रे एक्टिवेट होता है मोस्टली टच बा प्रेशर रे एक्टिवेट होता है ओके बा मूवमेंट्स रे एक्टिवेट होता है तो वंस ये एक्टिवेट हैला एठी कोन हो जो कॉइल दे की अछि ओके एटा को बांधी के रखिया भाई एटा को बांधी के रखिया भाई एई जगह रे एमती गोटे स्ट्रक्चर था कोंदी लासो नोन एज लासोटा गोटे जेंती तमे फॉर एग्जांपल रबर बैंड भले चिंता करो आमे जिंसटे को रखिया पे ता पोजीशन से रबर बैंड लगे रखछे जे रबर बैंड एमती खोली गला फुसकने उड़ी गला यस जेमती कि तमे हम बाटुली यूज करछो बाटुली जेन भिडियो तमे एटू जदी रिलीज करियो प्रेशर टा तो इट विल गो यस सिमिलरली एरो तमे एमती एरो पुल कलो रिलीज कले जीवो तो इमेजिन द लासो इज द सेम स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जे कि एई जिंसटी को बांधी के रखी थाए जेमती प्रेशर पडिला तो कोन हबो एटू जे लासोटी छिंडी जीवो लासो विल ब्रेक ठीक है as a result of which a total structure टी पुष्किनी बाहर को बाहरी आसियो ठीक अछि एंड बाहर की जो जिंस तांकर माने थिबो प्रे उसके अंदर घुस जाएगा as you can see here and once it has entered inside it will empty its content माने नेमाटोसिस्ट रो जो न्यूरोटॉक्सिन अछि ताकू खाली कर दो ता भीतर as a result of which this prey will become paralyzed and तापरे already ता चारी कड़े तो गुड़े के अच्छी ताकू भिड़ी आनिया भीतर को by the use of tentacles ठीक अच्छी तो tentacles ता चारी कड़े गुड़े हैगी ताकू भीतर को नहीं आसीबे into the mouth and inside the mouth they will digest it बुझेला रे so nidoblast is basically used for anchorage defense or to capture food that is prey is that clear people yes very unique thing very interesting thing एटा को भलो बारे बुझिबो तो ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ओके उसके बाद देखिए a gastrovascular cavity that is cylindron gastrovascular cavity और cylindron आपको स्टार्टिंग से बोला था कौन हो आगुरु ए पर्टिकुलर कैटेगरी और ग्रुप को हमें सिलेंटेराटा कहूतिलु कौन पाई कहूतिलु बिकॉज ऑफ दिस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी ठीक अछि दिस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी वाज द रीजन व्हाई वी रेफर टू इट एज द सिलेंटेरेटा and the cavity was known as cylindron ठीक अछि and तार गोटे सिंगल ओपनिंग थिला that is mouth ठीक अछि fine and कोठी थिला ए जो स्ट्रक्चर टी देखु छ तमे the structure which you see here ए जो स्ट्रक्चर टी देखु छ तमे एटा को जाय हाइपोस्टोम रो ऊपरे कोन रहिला माउथ so that functions both as mouth as well as anus ए जो मझी सेक्शन टी देखु छ एटा हला तमरो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी ठीक है एटा हाइड्रा in case of Aurelia or in case of the Portuguese man of war Physalia ठीक है जेलीफिश जोटा तांको केस रे
slightly different structure, right? ଏଠି tentacles ଟା ଉପର ପଟକୁ ଅଛି, ଏଠି ଏ ଓଲଟା ହେଇକି ଅଛି ଏମିତି, ତ tentacles ତଳକୁ ଅଛି, here it is reversed, ठीक है, upside down. So therefore tentacles are towards the lower sections. तो lower section में क्या हो रहा है बच्चा, ये हो गया तुम्हारा माउथ या anus section and this is the hypostome. यहाँ से आपकी एंट्री होती है फूड वगैरह की, बुझेला, एंड दिस सेक्शन इज द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. जी क्लियर, अरे बुझेला, फाइन. ठीक है, देन मेटाजेनेसिस, पॉलिप एंड मेडुसा, ठीक है, पॉलिप एंड मेडुसा, फाइन. तो जो आपकी इमूवेबल है, दिस आर इमूवेबल, ये पॉलिप, ठीक है, जो आपकी इमूवेबल होती है वो आपकी पॉलिप कहलाती है. दे दे कैन नॉट मूव, ठीक है, पॉलिप्स आर नॉर्मली वंस दैट कैन नॉट मूव, दे आर अनेबल टू मूव, ठीक है. whereas medusa are the free swimming forms, you can see here, aurelia हो गया, they are free swimming. So polyp example में hydra, adamsia, that is sea anemone. In Medusa examples, we have Aurelia. ठीक है, Aurelia, Physalia, Portuguese man of war, jellyfish, ठीक है, Obelia, ये सब इसमें आ जाएंगे. Okay, so these are two types of cnidarians. एक आपकी polyp, दूसरी Medusa. Polyp is tubular, attached, asexual form. Important. Attached माने non-motile, sedentary, कुटिया थांदी, and asexual, do not produce gametes. ठीक है, with upwardly directed mouth and tentacles. As I've already told you, इनकी tentacles upward directed होती हैं, ठीक है. Then Hydra and Adamsia are examples. Medusa रे form रे कौन चौथा बढ़िया, उल्टा चौथा, ठीक है, is umbrella like free swimming, sexual form है, with downwardly directed tentacles and mouth. Example Aurelia jellyfish or Physalia, Portuguese man of war, Obelia, ये मन समझते मेडुसा रे आंती. तो दुईटी फॉर्म में पाइले और पॉलिप एंड मेडुसा. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू वन थिंग, पॉलिप मेडुसा भितर इंटर कन्वर्शन जो होता है ताकू हमें ना कौन देता है, मेटाजेनेसिस, ठीक है, क्लियर बच्चा, ओके. ठीक, look at this, alternation of generation, metagenesis, as you can clearly see in this figure, clearly see in this figure how this happens, ठीक है. एग्जाम्पल में हमने किसको लिया, ओबेलिया को लिया. वी आर कंसिडरिंग व्हाट, ओबेलिया हियर, ठीक है, दिस इज ओबेलिया, फाइन. तो यू कैन सी पॉलिप कॉलोनी बाहर ले, ठीक है जी, फ्रॉम विच मेडुसा रा बर्ड बाहरला, गोनाड्स फॉर्मेशन कले, मेल फीमेल फ्यूज करी जाइगोट, जाइगोट से बना प्लानुला लार्वा, प्लानुला लार्वा से सेटल लला पर कौन ला पॉलिप फॉर्मेशन कला, ठीक है. इस चीज को जस्ट फॉर 2 minutes काइंडली ऑब्जर्व, जस्ट फॉर 2 minutes, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट.
ओके ठीक है now why I asked you to observe this because तम एनसीईआरटी बही रे गोटे स्टेटमेंट अछि and इसकी basis रे already previous years question रे this thing has been asked कौन ये statement देखो look at this statement please look at this statement it says polyps produce medusa are sexually important polyp कौन तैयारी कले medusa केमिति तैयारी कले ना asexually तैयारी कले किंतु medusa form the polyp sexually ठीक है तो एटा assertion reason रे पचरा जाइची already कौन the all Nidarians show metagenesis that is alternation of generation and alternation of form reason कोइला polyps produce medusa asexually medusa produce polyps sexually so assertion is true reason is true and the reason is also the correct explanation for assertion मन रखियो okay that's why I said keep your NCERT textbooks open set clearly this statement is mentioned mark it ठीक है okay fine ठीक now look at the various kinds of Nidarians are the most beautiful of invertebrates Nidarians are the most beautiful of the invertebrates अगर इतने सुंदर सुंदर forms अच्छी you will be astonished माने beautiful look at this mushroom corals brain corals that is meandrina ठीक है madrepora fine tubipora all these are beautiful माने unique in structure बुझिपारलो तमे आउ गोटे जिनस शुणिथिबो द ग्रेट बैरियर रीफ और द ग्रेट कोरल रीफ ठीक है एक मिनट कौन पूछा क्या पूछा सर डज दैट मीन दे प्रोड्यूस ईच अदर अल्टीमेटली यस एब्सोल्युटली यही तो बता रहे एकदम सही पकड़ा रे हिमा शाबाश आपने ये समझ लिया मतलब ये ग्रेट ठीक है मतलब इनकी मौत नहीं होती लिटरली दे आर इमोर्टल्स ठीक है ये एक यूनिक फीचर है एंड एक चीज आपको बता रहे कि आपने ये सुना होगा कि अभी जो हम में क्या होता है हम पैदा होते हैं वी बॉर्न वी ग्रो जुवेनाइल स्टेज हुआ उसके बाद मैच्योर करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं फिर सेनेसेंस बुढ़ापा आता है फिर हम लोग मर जाते हैं दिस इज नॉर्मली व्हाट हैपेंस इसका क्या अर्थ है कि सेलुलर रीजनरेशन हमारी जो होती है वो एक एज के बाद घटने लगती है गेट्स रिड्यूस्ड तो इन पर्टिकुलर निडेरियंस को लेकर अब एक रिसर्च वर्क चल रहा है इट हैज बीन लाइक मेनी पब्लिकेशंस हैव बीन डन ऑन दैट कि अगर इनसे इनकी ये जो प्रॉपर्टी है एंड ये कैसे करते हैं यूनिक सेल्स जो है उनको अगर हम लोग ह्यूमन फॉर्म में ह्यूमन सिस्टम्स में अगर अप्लाई कर पाए देन वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक अल्जाइमर्स डिजीज स्किज़ोफ्रेनिया जहां पे ब्रेन क्योंकि हमारी ब्रेन सेल्स जो है वो परमानेंटली डिफरेंशिएटेड है मल्टीप्लाई करती नहीं है मतलब आप पैदा जब हुए थे जो ब्रेन सेल्स लेकर आए थे न्यूरॉन्स लेकर आए थे हम लोग मरने के टाइम पे भी वही न्यूरॉन्स लेकर जाते तो जितने थे और जो थे वही है फ्रॉम द डे 1 टिल द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ तो इसलिए होता क्या है अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई डिजीज हो गई ठीक है तो न्यूरॉन्स अगर मान लो अफेक्टेड हो गए या मर गए फाइन वी कैन नॉट रिप्लेस देम क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं करते मर गए मतलब मर गए
खत्म, that part is gone. तो अगर मान लो हम लोग ये चीज वहां डाल लें, उसे वहां इंप्लीमेंट कर ले, तो मेनी पीपल जो कि कोमा में है वो कोमा से बाहर आ सकते हैं अगर उनकी वो न्यूरल सेटअप हम लोग ठीक कर दे। ठीक है, कैंसर पेशेंट्स जो कि इतनी ड्रेडफुली लाइफ से सफर करके दे आर डाइंग, उनको हम लोग ठीक कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग अपनी लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं, मतलब नॉर्मली ऑन एन एवरेज 60 to 70 की लाइफ स्पैन होती है, बट इफ दिस बिकम्स सक्सेसफुल देन परहैप्स दैट कैन बी इंक्रीज टू 80, 90 और इवन मोर। ठीक है, तो इससे बहुत सारे मिस्ट्रीज एंड नो हेल्प मिल सकता है, बट स्टिल द रिसर्च पब्लिकेशंस आर ऑन ट्रायल बेसिस, देयर आर ड्रग्स एंड नो serums that have been developed, बट उसकी ह्यूमन ट्रायल्स नहीं हुई है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स में जानना है तो यू कैन गो टू देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स लाइक pubmed.com, यू कैन गो टू नेचर मैगजीन है, उसकी वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करना, वहां पे जाओगे आपको एडवांस रिसर्च में बहुत सारी चीजें हैं, मिल जाएंगी ऑन दिस। ठीक है, चलो नाइस, ओके। तो ये हो गई बेसिकली आपकी नीडेरियंस की यूनिक फीचर्स। ना मैंने आपको उस समय एक चीज बोला था, दैट इज कोरल्स। ये कोरल्स क्या है, आपने सुना होगा कोरल रीफ और द ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, कोरल रीफ और ग्रेट बैरियर रीफ, फाइन। तो ये कोरल रीफ हुआ या ग्रेट बैरियर रीफ हुआ, ये जो दो चीजें हैं ये आपकी बहुत ही नो ब्यूटीफुल। वेयर वुड यू फाइंड दैम? इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड्स में मिलता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया का ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। ठीक है, इट स्प्रेड अक्रॉस इवन मोर देन 5000 किलोमीटर्स। ठीक है, 5000 किलोमीटर से बड़ा है। ठीक है, एंड इट्स ब्यूटीफुल इन नेचर। ये होता कैसे है? when these corals, that is the cnidarians die, जब ये मर जाते हैं तो लेयर बाय लेयर डिपॉजिट हो जाते हैं, लेयर बाय लेयर डिपॉजिट हो जाते हैं। वंस दे आर डिपॉजिटेड, एक लेयर गया, दूसरा लेयर गया, उसके बॉडी में होता क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट होती है, बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट होती है। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट स्लेट लाइन, तो ये लाइम के स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो डिपॉजिट होते होते once they are tall enough, they emerge out of the water। ठीक है, नीचे से लेकर बढ़ के पानी के बाहर आ गए। तो पानी की सतह पे ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर यू कैन क्लियरली सी द ग्रेट बैरियर रीफ और द कोरल रीफ। ठीक है, इस पे आप आराम से चल के जा सकते हैं, वेरी डीप इनटू द सी इवन। ठीक है, मान लो जब लो टाइड हो, वाई बिकॉज हाई टाइड होगा तो पानी होगा वहां पे, आप जाओगे कैसे? तो ओनली लो टाइड की सिचुएशन में एक टाइम है, there's a टाइम ड्यूरिंग द डे, तो 3 से 4 घंटे का, जहाँ पे पानी नहीं आता, तो पानी अंदर चला आता है इनटू द सी। तो ये आपकी बैरियर ही पूरी तरह से दिखती है, एंड पीपल वॉक ऑन इट एंड एंजॉय लुकिंग एट द नेचर्स मिस्ट्री। ब्यूटीफुल दिखता है, ब्यूटीफुल। ठीक है, ओके। तो ये हो गई आपकी बेसिकली नीडेरियंस, फाइन। उसके बाद देखते हैं नाउ स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, फाइन। ये देखो टेबल कोरल है, कितनी सुंदर फॉर्म है टेबल कोरल, फाइन। उसके बाद देखो ये ब्रेन कोरल है, मियांड्रिना। ठीक है, उसके बाद पिलर कोरल, फाइन। इनमें भी बहुत डाइवर्सिटी है। लुक एट दिस थिंग, व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट, ये है वो ग्रेट बैरियर रीफ, इट्स ब्यूटीफुल। ठीक है, वंस आई हैड बीन ट्वाइस टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो एक पूरा तो देख नहीं पाया, व्हाई बिकॉज इट्स ह्यूज। ठीक है, ऑलमोस्ट एंटायर ऑस्ट्रेलिया सराउंड कर लेता है। तो आई हैव सीन ओनली सम पार्ट्स लाइक इन कैनबेरा,
मेलबोर्न, पर्थ में मैंने देखा है, ठीक है, सम अमाउंट में. सो दैट्स ब्यूटीफुल. फाइन. फाइन. नीडेरियस की एग्जांपल देख लो बच्चा. हाइड्रा, ओबेलिया, फाइसालिया दैट इज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, अडामसिया और सी एनिमोन, पेनाटुला सी पेन है, गोगोनिया सी फैन है, मियांड्रिना ब्रेन कोरल है. ठीक है, ये जो लास्ट को आप देख रहे हो ना, पेनाटुला, गोर्गोनिया, मियांड्रिना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा आता है, तो याद रखिएगा. सी पेन और पेनाटुला. ठीक, क्यों पूछा आता है, इसका एक कारण है. आगे चल के आप पढ़ेंगे फाइलम में एक और फाइला है, एक और फाइलम है दैट इज इकाइनोडर्माटा. उसमें भी आपको ना ये सी नाम मिलेंगे, जैसे सी अर्चिन्स, ठीक है, सी स्टार्स, ऑर्बिटल स्टार्स, तो उनमें भी सी वाला टर्म यूज करते हैं. ठीक है, तो पीपल समटाइम्स हैव दिस हैबिट ऑफ गेटिंग कंफ्यूज्ड कि सी फैन नीडेरियन है. ठीक है, अभी आपने फ्रेश देखा तो याद रह गया भाई. ठीक है, यही चीज 6 महीने के बाद पूछेंगे, वो इकाइनोडर्म्स और इसको साथ में डाल देंगे, तो वहां पे याद नहीं आएगा बच्चों को. ठीक है, वाई, बिकॉज ये बहुत दिन हुआ, छूट जाता है. Fine. So that's why they ask it in the NEET examination also to see whether they are actually thorough or not. ठीक है, तो याद रखिएगा, सी पेन और पेनाटुला, ठीक है, ब्रेन कोरल और मियांड्रिना, ठीक है, सी फैन और गॉर्गोनिया. वैसे सी एनिमोन और एडम्सिया, इसे क्या कहते हैं, और इसे सी रोज भी कहते हैं. सी एनिमोन इज ऑल्सो नोन एज सी रोज और एडम्सिया. ठीक है, फाइन. एंड फाइसेलिया इज पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ये सबसे डेंजरस है. इट इज द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल दी नीडेरियंस. ठीक है, एंड सरप्राइजिंग, एक सर्वे बोलता है कि every year approximately 10 to 15,000 on an average people die because of the stinging of these Physalia. ठीक है, तो इनकी स्टिंगिंग से वो स्विमर या फिर जो टूरिस्ट आए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये कोस्टल बेल्ट पे, देखो यहाँ पे कोस्ट पे गिरा हुआ है, तो कोस्टल बेल्ट पे भी आता है. ठीक है, तो कुछ नहाने के लिए, मस्ती करने के लिए चले गए पानी में, तो दे कुड नॉट सी इट बिकॉज ये देखो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट दिखता है, तो इन्होंने, इसने उसको, उनको स्टिंग कर लिया, बिकॉज ऑफ विच दे ड्राउन. ठीक है, फाइन. और अगर मान लो छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए ये ज्यादा डेंजरस हो जाता है, बिकॉज उनकी मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट एक्ट करती है. So many things are there. So they are very dangerous in nature. So if you see Physalia anywhere near you, please do not try to touch it or go near it. ठीक है, चलो. तो ये हो गए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द नीडेरियंस. ठीक है, फाइन. ठीक है, ओके. इसके बाद जो अगला फाइलम आता है, दैट इज योर टेनाफोरा. दैट इज योर टेनोफोरा. ठीक है, अब उस टेनोफोरा पे ध्यान दो रे बच्चा. फाइन. टेनोफोरा को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम जेलीज. क्यों कॉम जेलीज बोलते हैं, बिकॉज देखने में तो दीज आर ऑल सिमिलर टू दैट ऑफ द सेम, दैट इज नीडेरियंस. व्हाई, बिकॉज basically they were previously placed in the same particular single phylum, that is, yes, that is Coelenterata, but now they have been separated. So in terms of appearance or form or shape, they are almost similar. ठीक है, but with certain differences that we'll see. Fine, okay. तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली, we call them comb jellies or sea walnuts. ठीक है, अब now इनमें the organization which you see same as that of the Cnidarians is tissue grade. मतलब, ठीक है, अब टिश्यू ग्रेड का मतलब तो आप समझ गए हो, दैट इज यहाँ पे आपकी एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मीजोडर्म गायब है. ओके, उसके बाद देखो सिमेट्री, जैसे वहां पे नीडेरियंस की देखी थी आपने, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री देखती है. सम केसेस रेटा को टर्म मन रखिबो. ठीक है, जो लोग क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए ये चीज मिलेगी, जो नहीं कर रहे उनको नहीं मिलेगी. आई एम वेरी सैड अबाउट दैट. ठीक है, ये जिनसोड़ा की कोई भी नहीं, तो आपको यहाँ मिल रही है तो इसको ले लो. समटाइम्स दे शो बाई रेडियल सिमेट्री.
ये एक यूनिक टर्म है, ठीक है। नॉर्मली वी कंसिडर देम टू बी अंडर रेडियल सिमेट्री, बट इन अगर मान लो आपको कहीं पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि नो which members or what kind of symmetry is shown by the no Ctenophora, तो ऑप्शन में रेडियल है, बाई रेडियल है, बोथ है, एंड डी ऑप्शन आपकी बाइलैटरल है, ठीक है। आंसर इज बोथ, ठीक है। क्यों? बिकॉज now when you say of radial means you can divide this thing into multiple sections, ठीक है, along any plane, ठीक है। ये आपने वर्टिकल प्लेन पे डिवाइड किया, माने बुझ लो, देखो यहाँ पे समझ में आएगा। वर्टिकल प्लेन माने हमें आपको एमिति वर्टिकल प्लेन पे डिवाइड किए ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे, दिस इज वर्टिकल प्लेन, ठीक है जी, लाइक दिस। बट आप इनको एक और प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। कैसे? इफ यू ऑब्जर्व देम केयरफुली, ठीक है, इफ यू ऑब्जर्व देम केयरफुली, तो एमानेଙ୍କର शेपटा गोटे इनवर्टेड सॉसर भलिया हो। सॉसर माने जो चाटा चा कप टी हमें जो प्लेट रखी दो, दैट इज नोन एज सॉसर, ठीक है। तो ऐसा हुआ। अब आप अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसे काटो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसे काटो, तो दो पीसेस निकल आएंगे प्लेट के, बुझिपारो। जमती तमे एटा बेस्ट जिनसटा कभी ट्राई करके देखना। जब मार्केट में पेपर प्लेट्स आते हैं खाने के लिए, हम लोग यूज करते हैं बुफे वगैरह में, ठीक है। तो देखिए वो ताव पे गोटे जरी कि किसी नो पेपर टाइप रो कोटिंग थी वो कार्डबोर्ड के ऊपर, यस। तो आप अगर थोड़ा सा पेशेंस रखे एंड टेक्निकली देखिए वो, तो हल्का सा उसको ना ऐसे ऐसे करके आप निकालोगे, तो से जो ऊपर जॉरीटा कि वो पेपर वाली कोटिंग निकल आएगी, ठीक है, एंड कार्डबोर्ड वाला पीस रह जाएगा, एंड बोथ विल बी सिमेट्रिकल, यस। तो ये कौन सी प्लेन पे हुई? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ठीक है। अब पहले कौन सा प्लेन पे काटा था? वर्टिकल प्लेन पे काटा था। तो जेहेतु हमें दुईटी प्लेन रे आपको काटी पारिबा, देन इसको नाम ना आप बाइरेडियल भी दे सकते हो, बुझेला पॉइंट? अंडरस्टूड? नॉर्मली बुक्स में रेडियल सिमेट्री लिखता है, बट रेडियल एंड बाइरेडियल बोथ आर पॉसिबल, एंड सेइथिपाई यार दुईटी सरफेस फॉर्म होता है। इसकी बॉडी में दो सरफेस फॉर्म होते हैं, क्या? एक होती है ओरल सरफेस, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ab oral surface, ମାନେ जो पटे माउथ अछि सेटा हेगला oral surface, and जो पटे anus अछि सेटा हेगला ab oral surface. Understood the point? This is very very important, very important, oral and ab oral, ठीक है, clear? बुझिएला? डन। यही चीजें यूनिक चीजें, ये कोई बताता नहीं है, और यहाँ हम बताते बच्चा आता नहीं है। मस्त है सीन है। नाउ दोस पीपल हु आर हियर, उनका फायदा, जो नहीं है आई एम सैड अबाउट दैट। सी हियर एज इंसर्ट ही तो मुझे एबे बुझोतली ओरल ab oral रे, ठीक है। देखो ध्यान से, इस पे अगर ध्यान दोगे आपको मिलेगा कि एज इंसर्ट ही एमिति दिखाओ जी, ये खुल जाएगा, छाते जैसा खुल जाएगा, ठीक है जी। once it is opened, then आप इसको बीच में से स्लाइड कर सकते हो, तो हाफ ऑफ द सरफेस अबव, हाफ नीचे, ठीक है। तो you'll get an oral surface and aboral surface, ठीक है जी, क्लियर? ओके। नाउ जर्म लेयर्स कितने हैं इनकी? डिप्लोब्लास्टिक है, 2 germ layers, that is ectoderm and endoderm, mesoderm absent, okay, fine. सिलोम नहीं, नो सिलोम प्रेजेंट, सिलोम इनमें नहीं है, hence they are acylomed, as you can see here। ये anus section है, ये mouth section है, so this is oral, that is aboral, ठीक है, क्लियर? तो आप यहाँ से बीच में से ऐसे काट सकते हो,
तो ये ऊपर वाली आपकी बन जाएगी एबोरल, नीचे वाली ओरल, बुझ पालो। बट नो कैविटी इज प्रेजेंट, काहे की देखो मेसोडर्म नहीं। इफ नो मेसोडर्म इज प्रेजेंट, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहां से आएगा आपका सिलोम? नॉट पॉसिबल। अच्छा, this is the most important thing. Ctenophora do not have any freshwater species. All are marine. तो exclusively marine है, ठीक है? They can be solitary और pelagic. Pelagic माने कौन? फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, ठीक है? फाइन। सॉलिटरी माने सिंगल। उसके बाद एक और एक डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट। इट विल नो, यहां ध्यान दो थोड़ा। आप बोलेंगे सर यहाँ पे माउथ भी है, आनस भी है, दुईटी ओपनिंग अच्छी, फिर हमने इसे इनकम्प्लीट क्यों बोला? बिकॉज एमाने कंप्लीटली फंक्शनल नुहंती, दे आर नॉट completely functional. Okay, they're not completely functional, hence incomplete है, hence incomplete है, ठीक है? Fine. Although the elementary canal might appear to be complete, but the digestive system is incomplete. ठीक है? Okay. Fine. डाइजेशन कैसा है? जैसा निडेरियन में देखा आपने, सेम वे इंट्रासेलुलर ହେଇପାରିବ, एक्स्ट्रासेलुलर ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ठीक है? ओके। फाइन। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, ठीक है जी। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली आल्सो, इन एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर आप देखेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम सिस्टम्स आर एब्सेंट। ता माने नुहे कि एक्सक्रीशन होउनी, कि सर्कुलेशन होउनी किंबा रेस्पिरेशन होउनी, सब जिंस होउची, बट सिस्टम नहीं है कोई पर्टिकुलर उसके लिए। कैसे होता है फिर? बॉडी सरफेस, सिंपल। गैसियस एक्सचेंज, बॉडी सरफेस। सर्कुलेशन, मूवमेंट इनसाइड। एक्सक्रीशन, अगेन बॉडी सरफेस। आंकरो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कौन होगा? सेम, अमोनिया। मोस्ट एक्वाटिक फॉर्म जितनी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म कहां थी, उनका अमोनोटेलिज्म ही दिखता है, मींस अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, ठीक है? फाइन। तो देखियो, रिप्रोडक्शन यहाँ पे आपका बेसिकली ओनली सेक्सुअल फॉर्म्स में आता है, असेक्सुअल इनका नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन दैम, ठीक है? ये बड़ा ट्रांजिशन है बिटवीन दी नो निडेरियंस एंड दी क्टिनोफोरा। निडेरियंस रे असेक्सुअल सेक्सुअल दीटा होतिले, यहाँ पे ओनली सेक्सुअल है। दैट मींस यू हैव गैमेट फॉर्मेशंस एंड सेक्सुअल reproduction involving fertilization. They are hermaphrodites. जितने की Nidarians में कौन देखे थे? They are monoecious as well as dioecious. इनके केस में क्या है? इनके केस में both male and female reproductive parts are present inside the same one. That is, they are monoecious in nature. फिर क्या हो गया? External fertilization है. That is common. कि पानी में रहते हैं तो they lay their eggs as well as the sperms in water where fertilization occurs. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ठीक है? अप टू देखिबो टिल हमरो नॉन कोऑर्डिनेट्स जेतिक अछंदी प्राय समस्तंकर आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही होगा। तो आंख बंद करके आप इनडायरेक्ट लार्वल फॉर्म डेवलपमेंट ले सकते हो, ठीक है? किंतु सेचरे मन रखिबो कि लार्वल फॉर्म्स किछि किछि केस रे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके नाम याद रखोगे। जैसे प्लानुला लार्वा इन केस ऑफ निडेरियंस इज इंपॉर्टेंट, एम्फीब्लास्टुला पैरेन्काइमुला इन केस ऑफ द पॉरिफेरन्स आर इंपॉर्टेंट। आगु को और बहुत इंपॉर्टेंट लार्वी गुडे देखिबा, ठीक है? यूनिक फीचर्स क्या है देखो बच्चा, लोकोमोशन इज बाय 8 वर्टिकल एक्सटर्नल रोज ऑफ
सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स यही कॉम्प्लेक्स मानक पाई कि ही इनका ये यूनिक नाम आया है बुझेला यही गुड़ा देखुछ तमे एटा देखिया पाई से कोन कॉम्प्लेक्स को जाए केतोटी थांती 8 वर्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 इन 8 रोज थांती तो इन एमानकर मूवमेंट्स द्वारा कोन हेता है एटी जो लागी छि तम टेंटेकल्स ए टेंटेकल्स मध्य मूव करथांती बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट देन हमरो दिस ऑर्गेनिज्म इज एबल टू मूव ठीक है बुझिया पॉइंट सो एंकर लोकोमोटिव स्ट्रक्चर टी कोन ciliated complex with tentacles in case of the cnidarians it was only tentacles oh acha what is missing in the tentacle here compared to the cnidarians रा tentacle ने कौन थिला जोटा एठी नाही बा कौन डिफरेंट अछि एठी मार्क करो cnidarians मानक tentacle रे आपको नीडोब्लास्ट मिला बा नेमाटोसिस मिला जोटा कि स्टिंगिंग सेल्स पॉइजन वाला आंको केस रे नीडोब्लास्ट आर एब्सेंट वेरी यूनिक जोटा कहूची प्लीज पे अटेंशन एंड रिमेंबर नीडोब्लास्ट आर एब्सेंट आउ कोन कैलोब्लास्ट आर प्रेजेंट कैलोब्लास्ट कोन स्टिकी सेल्स माने एमाने पॉइजन इंजेक्ट करंतिनी तांकर प्रे बॉडी रे कोन करतांती आंको एंड गुडी करे स्टिकी सेल्स अछंती स्टिकी तो ये क्या करते हैं ना दे रैप अराउंड द प्रे टी आसिला प्रे चारि कड़े गुडे हिजवे तो जेहेतु स्टिकी तो प्रे चिपक गया आ प्रे खसी के जाई परिवनी फिर क्या करेंगे इस टेंटेकल को सीधा लेकर मुंह के पास एंड खा लेंगे बुझ पा रहे पॉइंट तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पॉइजनिंग द प्रे they use these sticky cells to catch the prey and then eat it so that is the difference between the tentacles in case of cnidarians and tentacles in case of ctenophora अरे बुझिएला रे ओके फाइन उसके बाद देखो hypostome are present yes see hypostome actually is more prominent in case of cnidarians in case of the ctenophora hypostome तो है ठीक है I'll show you one thing ठीक है hypostome है but hypostome is not prominent क्यों because इनमें tentacles जो है वो ऊपर की तरफ है tentacles ऊपर की तरफ मतलब aboral region के पास है तो उनके केस में इनके जो cnidarians ना ओरल के पास था मुंह के पास सराउंडिंग पे था दैट्स द रीजन व्हाई उनमें हाइपोस्टोम था सो दैट माउथ इज प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स इनके केस में दैट रिक्वायरमेंट इज नॉट देयर इसलिए इनमें हाइपोस्टोम छोटा सा होता है बट इज नॉट एज प्रोमिनेंट एज इन केस ऑफ cnidarians बुझ रहे ओके देन यूनिक फीचर्स अगर आप देखोगे तो they have the ability to produce light. This property is known as bioluminescence. ठीक है इनमें बेसिकली क्या होता है certain kinds of chemical reactions occur mostly involving sulfur and phosphorus ठीक है तो ये chemical reactions की वजह से they seem to emit light and this property is referred to as the bioluminescence is that clear ठीक है ये आपकी animal kingdom में very primitive creatures है जो कि आपकी bioluminescence देते हैं ठीक है जी so this is a very unique feature ठीक है apart from certain forms of arthropods insects only these creatures that is the ctenophora show bioluminescence. For example, firefly देखिचो
फायरफ्लाई केस लुसिफेरिन थाए से लुसिफेरिन जगह सेटा जोड़ू थाए ठीक अछि बट तो वो एक बायोलुमिनेसेंस है सेमती एमानक बार बायोलुमिनेसेंस अछि apart from this no other animal in the animal kingdom may display bioluminescence बुझ पालो भाई एग्जांपल्स देखो प्लूरोब्रैकिया टीनोप्लाना ठीक है दे आर ऑल बेसिकली टीनोफोर्स एंड अपीयरेंस सब में सिमिलर है नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस फाइन तो ये हो गई आपकी टीनोफोरा का कच्चा चिट्ठा फाइन वी हैव अंडरस्टूड टुडे पोरिफेरा वी हैव अंडरस्टूड निडेरियंस वी हैव अंडरस्टूड टीनोफोरा ठीक है चलो आज का अध्याय यही समाप्त करते हैं आई होप यू मस्ट हैव लर्न समथिंग टुडे ठीक है तो अगली क्लास में काइंडली सब लोग प्रेजेंट रहना एंड ऑल ऑफ यू नो मस्ट अटेंड द क्लासेस सो दैट आप लोगों का कलेक्टिव बेनिफिट हो एंड प्रोग्रेसिव हो एंड बाय गॉड्स ग्रेस यू कैन क्रैक द नीट एग्जाम ठीक है चलो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ सी यू पीपल हैव अ नाइस डे चलो